वेलकम टू IFS स्टूडेंट्स। हमारे साथ में कनेक्टेड है आज सिमरन एंड शी हैज रिसेंटली क्वालिफाइड CSIR नेट लाइफ साइंस एंड शी आल्सो हैज क्वालिफाइड फॉर बोथ LS एंड JRF। तो लेट्स वेलकम हर एंड लेट्स नो हर जर्नी। जानते हैं कैसी की थी प्रिपरेशन, क्या क्या आप इनसे सीख सकते हो। लेट्स नो इट ऑल। सो हाय सिमरन, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine. What about you, ma'am? I am also doing good, dear. Thank you for asking. So first of all, a big congratulations on your result. Please tell us your rank, क्या score है, क्या percentile है? Thank you so much. And I cleared JRF and my rank is 170. And I'm really thankful to IFS for this because the biggest contribution in my preparation is from IFS only and their teachers, especially ma'am. Basically, there is ma'am who teach very good. So yeah, firstly I want to thank you for IFS only because they crash course and test series. Like you have, but when you are preparing, like I give the exam last year also, but I got very less mark. Like I can't even qualify lecturer only. But yeah, test series you should must attend. अगर किसी को प्रिपेयर करना है so just go for the test series only. If you had prepared everything, like you know all the syllabus and all, so I will suggest कि yeah, go for the IFS test series. They are very good. Like not only they give you test series, they give the explanation also. Yeah, you can go through the explanation also. Yes. Yeah, that's a big help. Great. So first of all सिमरन, please tell me कि आपने मास्टर्स का कंप्लीट किया था एंड कहाँ से कंप्लीट किया है, सब्जेक्ट क्या था आपका? मैंने मास्टर्स 2022 में कंप्लीट किया था एंड फ्रॉम सिक्कर ओनली, सिक्कर इन राजस्थान। एंड मैंने जूलॉजी से कंप्लीट किया था मेरा मास्टर्स। ओके ग्रेट। तो टेल मी कि हाउ वाज योर फीलिंग अबाउट द रिजल्ट? कि एक्साइटमेंट थी वो तो डेफिनेटली होगी, बट मुझे जानना है कि क्या आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड था या फिर इट वाज अ सरप्राइज फॉर यू? Of course it was a surprise because earlier I was preparing for SET exam. Okay. Yeah, from IFS platform only, and I got cleared in Rajasthan SET also. So SET syllabus and NET syllabus are very different. So I have only 1 month left for preparation of this. So I think maybe I will not qualify JRF, but हाँ LS का पक्का था कि हो जाएगा. So I was just waiting for the result कि ठीक है हो जाए, and it was a very big shock and surprise also. Yeah, it got clarified. Okay, great. So I hope you loved the surprise. बहुत आपको अच्छा लगा देख के. What was the reaction of your family? आपकी family का reaction क्या रहा? It was shocking because I was just sitting, even though it's like first time whenever the scorecard releases, the scorecard के 15 days के बाद में आपका जो result होता है proper release होता है. Yes. So it's been like you have to wait for 15 days and it's my first time, so it was very hard to wait. So I was like going on the IFS platform and various other platform to check the ranks and all. Yes. And IFS predicted, they like when I entered my percentage and all, they told me that you have cleared your JRF. But okay, I was waiting for the result, and it's the first time that within only 3 to 4 days they released the result. So on Insta I got the post कि ठीक है result declared. So I just went and checked it and it was cleared. So it was like ठीक है, family was all shocked and they were very proud of me कि ठीक है you cleared it in second attempt only. And from like ठीक है 1 to 2 month की preparation से हो गया, वो बहुत shocking था. Yes. So that's great, and yes, we had the predictor for you all, and we were trying that ज़्यादा से ज़्यादा accurate हो सके, and I think many of the students have responded, yes, ma'am, it was definitely true. Yeah, it was correct, yeah. Yes. So बहुत बढ़िया. And अच्छा मुझे ये बताओ कि since you have mentioned कि आपका second attempt था and you qualified, so what do you think कि आपने first attempt में कौन सी mistakes की थी कि उसको rectify करके आपने इस attempt में qualify कर लिया? So can you tell us about the mistakes? Yeah, sure, because होता है कि मिस्टेक सीख के मैंने देखा कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंस से होता है. फर्स्ट थिंग पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, लाइक पेपर तो मैं ये जानती हूँ जितने बच्चे बैठते हैं सबके सब अटेम्प्ट करने का फुल ट्राई करते हैं, बट जो आपको जैसे कैलाश सर ने हमें बताया था यूट्यूब के वीडियो के प्लेटफॉर्म से ही कि आपको क्या प्रिपेयर, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करोगे आप, तो बस हाँ वो बहुत चीज मेन थी. बिकॉज जैसे पेपर ए करो, मैंने लास्ट टाइम क्या किया था, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन रीड किए थे. जो मुझे नहीं आया वो छोड़ दिया, जो आ रहा है मैं उसको अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ था. मैं ए पार्ट बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी. सर का कहना है कि पढ़ो सारे क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि एक मिनट दो, आप सिर्फ एक बार पढ़ो उसको. आपने यूनिट किया है,
तो अटेम्प्ट करो, वरना क्वेश्चन नंबर नोट कर लो कि मुझे ये सारे करने हैं, लास्ट में गो फॉर देम ओनली। एंड वो बेस्ट है, आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं करते। बिकॉज समटाइम्स लास्ट टाइम मैंने किया था प्लांट फिजियो अटेंड नहीं किया था, एंड मैंने कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस उसके अटेंड किए थे कि ठीक है चलो लेट्स गेट इट, हो जाएगा करके। बट वो बहुत नेगेटिव मार्क्स नेगेटिव में जाते हैं, ट्रू। उसी में रह गई थी मैं लास्ट टाइम कि ठीक है मेरे बहुत क्वेश्चंस उसमें नेगेटिव में कट हो गए थे। सेकंड थिंग कि जरूरी नहीं है आप 13 यूनिट है तो 13 यूनिट्स पे ही जाओ, सारा फोकस करो। यस, अकॉर्डिंग टू सर एंड मैम विशाल सर का कहना है कि जितनी करो उतनी बेस्ट करो। तो मैंने 9 to 10 प्रिपेयर किया था IFS के प्लेटफॉर्म से, एंड PYQs किए थे। मैंने लास्ट टाइम PYQs छोड़ दिए थे, मैंने PYQs किए थे, सेल्फ भी किए थे, बाकी सेट की बुक्स थी उससे भी किए थे। एंड IFS आपको देता है मॉक टेस्ट के साथ में PYQs की, वो भी देता है टेस्ट सीरीज। मैंने वो भी अटेंड किए थे। तो PYQs एंड टेस्ट सीरीज ये मस्ट है। बाकी पेपर अटेम्प्ट का तरीका आपका बहुत सही होना चाहिए कि आप ना सारे क्वेश्चंस मत रीड करो जो आपके काम के हैं, उनको रीड कर लो, बाकी सारे छोड़ दो, ठीक है। उनको मत देखो एक बार को, अगर आपका स्कोर बन रहा है ना जस्ट फोकस ऑन दैट, उसमें से कुछ निकाल सको तो निकालो, बाकी तो नेगेटिव मार्क है। सो वेरी ट्रू। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट 3 लर्निंग्स मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, डोंट वेस्ट टाइम कि पूरे 75 क्वेश्चन आप पूरे पढ़ रहे हो, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। When you read one line, you get to know कि जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियो है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, टेक्निक्स है। आपको पता आपने यूनिट पढ़ा है, गो फॉर द क्वेश्चन। पता नहीं पढ़ा है, छोड़ दो, why to waste that time। वो एक हाँ बहुत क्रूशियल होता है। हमें लगता है बस पढ़ लेती हूँ मैं एक बार, वो क्या पता मेरा इसमें से हो जाए, नहीं होता। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग लास्ट टाइम ऑल्सो, आई वाज थिंकिंग प्लांट का है, BSc में तो पढ़ा होगा मैंने, एक ट्राई मार लेती हूँ, ये वर्ड तो सिमिलर लग रहा है मुझे, और वो नेगेटिव में ही था मेरा, ऑलमोस्ट नेगेटिव में गया था सारा। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान रखो कि पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना वो सब बता देंगे आपको, पर उस टाइम पे उस 3 घंटे में आपको कैसे अपने आप को बिल्कुल हर एक सेकंड को यूज करना है, ये आप यहाँ से सीख सकते हो डेफिनेटली। एंड वेरी ट्रू, डोंट गो फॉर स्टडिंग द 13 मिनट्स, बिकॉज हर एक यूनिट को डिटेल में डीप में पढ़ के याद रखना बहुत मुश्किल है। अपने फेवरेट्स पे कर लो ना, कम से कम 8 to 9 अगर आपने प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू क्वालिफाई द एग्जाम। आपको अच्छे सॉल्व भी कितने क्वेश्चंस करने हैं जी, बस वही है कि मतलब आपका हर एक यूनिट से प्रॉपर है कि आपको 7 to 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपको उन्हीं पे जाना है, एंड उनसे आपका क्लैरिफाई भी हो जाएगा। बट हम ट्राई करते हैं 13 के 13 पढ़े, मैंने लास्ट टाइम 12 पढ़े थे, बट स्टिल क्वालिफाई नहीं हुआ, LS भी नहीं हुआ। तो फिर वो मेथड नहीं है कि आप पढ़ भी रहे हो, आपको याद भी हो सके। PYQs भी नहीं करे मैंने, टेस्ट सीरीज भी कोई अटेंड नहीं करी मैंने, और बस पढ़ के सब कुछ गई थी। बट अप्लाई करने का तरीका होता है, नेट में आपसे कोई नहीं पूछता कि थ्योरी बताओ कौन सी पढ़ी, कुछ पढ़ा। थ्योरी समझ के आप कैसे अप्लाई करते हो ना, उसको वो जरूर पूछते हैं वो। Yes, so I always say कि you don't have to pick the difficult 25। आपको नहीं पूछा जाएगा कि कौन से 25 सॉल्व किए हैं। इजी 25 करो तो भी आपको उतने मार्क्स मिलेंगे, डिफिकल्ट करोगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे। So go for the simple one, simple path पे चूज करो। कि भाई 75 है तो 25 तो बहुत हार्ड है, बैठते हैं उनको पता है 25 नहीं हो पाते, बट नहीं 75 में से भी आप 25 अगर पढ़ा हुआ है ना तो इजी फिक्स कर लो। जो आपको लग रहा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके अकॉर्डिंग बहुत इजी है, तो बस हम उनको पिक कर लो। बिल्कुल, ओके ग्रेट। एंड सिंस यू हैव मेंशन कि लास्ट टाइम आपने PYQs प्रैक्टिस नहीं किए थे, इस बार आपने किए थे, तो आपको क्या लगता है कि PYQs का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या क्या एक लर्निंग्स वहां से स्टूडेंट ले सकता है? PYQ से आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग आता है। मैं ये नहीं कहूँगी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल, नहीं होते क्वेश्चंस, नहीं रिपीट होते। 5 इयर्स के भी नहीं होते क्वेश्चंस रिपीट, कुछ जो तरीका है ना वो रिपीट होता है। लाइक मैंने जेनेटिक्स से क्वेश्चंस अटेंड किए थे, तो उसमें जो क्वेश्चंस थे आपको दिए हुए क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पूछ कुछ और है, लेकिन मेथड ऑफ सॉल्विंग मुझे समझ में आ गया था कि जेनेटिक्स में से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स आए बहुत सारे, हम छोड़ देते हैं कि नहीं न्यूमेरिकल्स छोड़ दो, आपसे कभी अटेंड नहीं होंगे। जेनेटिक्स से आते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गया, हार्डी विनबर्ग्स के आते हैं, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो PYQs करने में पता चला कि क्वेश्चन तो इजी है, मेथड आ जाएगा और टाइम लिमिट आ जाता है। मॉक टेस्ट जो मैंने IFAS पे अटेंड किए थे, तो उसमें आपका 3 आवर का सीटिंग होता है ना, जो बहुत प्रॉपर तरीके से रहता है कि 3 आवर का सीटिंग है प्रॉपर, आप उसको अटेंड कर लीजिए। उससे बहुत पता चलता है कि आप वहां पे जाने के बाद में हम बहुत तरीके लगाते हैं। मैं बहुत लेंदी मेथड यूज करती थी कि करो, लेकिन इस बार बहुत शॉर्ट ट्रिक्स करी
तो पीवाईक्यू से यही है कि पीवाईक्यू से पेपर अटेम्प्ट करना आ जाएगा, और जो क्वेश्चंस है ना सिमिलैरिटी तो निकलेगी, रिपीट Yes. कुछ नहीं होगा लेकिन सिमिलैरिटी बहुत निकलेगी। बिल्कुल। तो आई थिंक व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन आपको उसके पीछे का अगर लॉजिक समझ में आ गया है, सेकंड टाइम अगर आप सेम क्वेश्चन, ऑफ कोर्स सेम नंबर्स ही रहेंगे, थोड़ा बहुत तो सेम रहेगा, डिफरेंस तो आप इमीडिएटली आपका थिंकिंग चेंज हो जाता है कि अच्छा इसको उस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस देते हैं सीएसआईआर वाले कि इतने लेंदी है, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने तो पता है आपको कि लास्ट की 2 लाइन पढ़नी है मुझे, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। बिल्कुल, यस, दे विल लाइक मेक अ गुड स्टोरी फॉर यू। Yeah. एंड लास्ट में कुछ तो भी एक अजीब सा छोटा सा सेंटेंस रहेगा, ऑन दैट बेसिस एवरीथिंग विल बी देयर। बस हम उसको करना, और हम उसमें ऊपर वाले में इतना उलझ जाता है कि हमारे 5 मिनट्स कब चला जाता है पता नहीं चलता। सोचते हैं कि यार क्वेश्चन तो छोड़ो, नहीं समझ में आया, फिर जब सॉल्व होता है कि ठीक है यूट्यूब पे देखते हो, अरे यार ये तो हमें आता था, हमने वो चीज अप्लाई नहीं करी, वो पीवाईक्यू तो सॉल्व हो जाती है। और एग्जैक्टली है ना, होता भी कि कभी बड़ा क्वेश्चन रहा तो हमको 2 बार पढ़ना पड़ता है, 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं, तो उसमें और टाइम वेस्ट कर देते हो। हाँ, इसीलिए यस, सो डोंट डू दैट मिस्टेक। डेफिनेटली पीवाईक्यूज आई थिंक आपको समझ में आती है चीजें कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपका टॉपिक है रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन में किस पे ज्यादा फोकस है, एंजाइम से पूछ रहे हैं, प्रोसेस पूछ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, तो आपको वो एक आइडिया मिलता है पीवाईक्यू से, एंड ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। नेट हमेशा आपका क्राइटेरिया चेंज करता है, लेकिन रेप्लिकेशन तो आप हर साल पढ़ोगे, बस वो अपना मेथड चेंज करता है कि मैं इस बार इस चीजों से पूछने वाला हूँ, थोड़ा सा और इन चीजों से पूछने वाला हूँ, बस वो आपको बहुत अच्छे से पता चलता है पीवाईक्यूज। यस, डेफिनेटली। ओके, टेल मी कि आप जब एक फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, जैसे कि आपने मुझे कहा था कि उसका सोल्यूशन वीडियो में मिला था जो बहुत बेनिफिशियल होता है, बिकॉज द टीचर्स टेल यू द शॉर्टकट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर जो फॉलोइंग इज करेक्ट तो आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, आपको अलग अलग मेथड्स पता चलते हैं। तो जब भी आप एक फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करते थे तो आपको उसमें से क्या क्या सीखने को मिला था, आपने कौन कौन सा सेल्फ एनालिसिस किया था, हाउ यू सेल्फ इम्प्रूव बाय सॉल्विंग अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट? मेरा जो फर्स्ट टेस्ट था वो बहुत ज्यादा लाइक खुद के लिए एम्बैरेसमेंट टाइप सा था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट रिमेम्बर द मार्क्स, बिकॉज एक्चुअली मैंने बहुत सारे दिए थे उस टाइम पे टेस्ट जो थे, बट हाँ आई थिंक जो मेरा सी पार्ट था उसके अंदर मेरे 75 क्वेश्चंस मेरे सामने थे, मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे उसमें से, एंड ओनली 4 उसमें से करेक्ट थे, 4 to 5, बिकॉज मैंने ऐसे बिना प्रिपरेशन के वो टेस्ट अटेंड किया था जो लास्ट ईयर मेरे अवेलेबल थे, एंड इट वाज लाइक कि मैंने पढ़ा पूरा तो मैं अटेम्प्ट भी पूरे नहीं कर पाई, मेरे 25 के 25 लास्ट के 4 मैंने गैसेस पे किए थे कि नहीं गैस है सही हो जाएगा, नहीं गैस करके सही हो जाएगा, तो बहुत कम सही हुए थे, और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे आते हैं सारे, तब मुझे हुआ था कि आपको आते भी हैं, आप फिर भी रह गए इसके अंदर। तो ठीक है, बाद में आपने मेथड सीखा मैंने कि आप किस तरह अटेंड करते हो पेपर को अटेंड करने का भी एक तरीका होता है कि आप किस तरह प्रॉपर कर सकते हो। उसके बाद के जो मैंने 5 पेपर अटेम्प्ट किए थे, स्कोरिंग धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा था। क्यों? बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया, ठीक है मैंने अटेम्प्ट किया, किस तरह कर रही हूँ। नेगेटिव मार्क का जो कम होने का होता है ना, स्टूडेंट में यूँ रहता है कि अगर मैंने क्वेश्चन अटेंड नहीं किया, क्या पता मेरे 4 मार्क्स चले जाएंगे, कटेगा तो मेरा थोड़ा सा ही कटेगा, कोई बात नहीं, और वो मिलके बहुत सारा कट जाता है। वो चीज मेरी बहुत कम हो गई थी। मेरा हमेशा रहता है पेपर्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाती, बट मॉक टेस्ट देने के बाद में फील आ गया कि जस्ट गो फॉर द क्वेश्चंस यू आर 101% श्योर, अदरवाइज यूज एलिमिनेशन मेथड। इफ यू कैन लाइक कि आप 2 ऑप्शंस निकाल सकते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि 1 के लिए तो आप फिर भी जा सकते हो, लेकिन आप 4 के 4 पे गैसेस लगा रहे हो ना कि ठीक है ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये मॉक टेस्ट से सॉल्व हो जाता है। मॉक टेस्ट से नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हो जाती है आपकी। आप खुद को जैसे पेपर कर रहे हो ना तो आपको सॉल्व हो जाता है कि मेरा जेनेटिक्स तो बहुत प्रॉपर है, अब मैं इसको रिवाइज नहीं करती हूँ, थोड़ी देर मैं थोड़ा सा बायोकेम पे ध्यान देती हूँ। बायोकेम में भी किस पे ध्यान देना है आपको कि एंजाइम्स तो मैं पढ़ चुकी हूँ, मुझे अच्छे से आता है, लेकिन क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो रहे उसके, तो कोई उसका ही नहीं है। बट हाँ, क्वेश्चन समझ के मुझे समझना है, एंजाइम्स तो मैंने पढ़ा हुआ है, बट जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो मैंने नहीं पढ़े हैं, तो वो बेनिफिट हुआ था मुझे उससे। बिल्कुल। सो यस, डेफिनेटली, एंड एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आज जैसे आपने बताया कि चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आपकी काफी चेंज हो गई थी, रैंडम अटेम्प्ट नहीं करने, भले कम करो पर सही सॉल्व करने हैं, और वो अगर आप शुरुआत में कम करो तो कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ेगा नंबर। ऐसा नहीं कि पहला पेपर में, आई रिमेम्बर, मुझे याद है मेरा पहला जो टेस्ट था 35% आए थे मेरे, एंड आई वाज वेरी मच डिप्रेस्ड कि इससे कुछ नहीं हो रहा है। बट यस, ग्रेजुअली वी इम्प्रूव, वी लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी टेस्ट। अब हर टेस्ट से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो, कहीं पार्ट बी में कुछ लर्निंग्स मिल गई, कहीं पार्ट सी में, पार्ट ए कैसे करना है, सीक्वेंस क्या रखना है, वो सारी बात हम धीरे धीरे करके सीखते हैं। सो दैट्स वंडरफुल कि आपने अपने हिस्से की लर्निंग तो वहां से बिल्कुल ले ली थी। ओके, ग्रेट।
सो टेल मी कि जब आप एक एग्जाम देते थे तो आप कितना टाइम देते थे हर एक सेक्शन को? एक सेक्शन को आपको रैंडमली कितना टाइम लगता था सॉल्व करने को? When you are giving the exams or like when you are preparing it at home? When you are like giving the mock test, आप पार्ट ए बी सी को कितना टाइम देते थे? जो आपको फाइनल एग्जाम में आई थिंक वही स्ट्रेटेजी यूज की होगी फिर। फर्स्टली मैं सी पार्ट में जाती थी। मेरा जो क्राइटेरिया था कि ठीक है ए पार्ट में आप ज्यादा टाइम नहीं दोगे, बिकॉज पार्ट सी में क्वेश्चन ऐसे हैं कि या तो आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे या फिर आपको बहुत टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। ओके फिर है ना, मैंने पार्ट सी में पहले अटेंड करना शुरू करा। जब आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वो हो जाते हैं कि मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं, बस उसको वहां पे खत्म कर दो, देन गो फॉर पार्ट बी। आई थिंक 1.5 आवर तो आप पार्ट सी को दो, इतना तो वो डिजर्व करता है कि ठीक है 1.5 आवर तो उसको चाहिए स्टार्टिंग के फेज में। अब बीच में स्विच करते रहो, लाइक मैंने थोड़ा सा पार्ट सी किया, फिर मैंने थोड़ा सा स्विच किया पार्ट बी पे, बस। हाँ, पार्ट सी के मैंने आई थिंक पहले 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जो मैं बिल्कुल श्योर थी कि मुझे बिल्कुल अच्छे से आते हैं। देन आई स्विच टू पार्ट बी, उसके मैंने थोड़े से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हाफ एन आवर उसको दिया। देन आई गो बैक टू पार्ट सी, उसको पूरा कंप्लीट करके, मतलब प्रॉपर्ली अगर वो सारा टाइम देना है तो उसमें से 1:45 मिनट्स आप उसको दो, अप्रॉक्स 1.5 आवर पार्ट सी को दो, एंड हाफ आवर टू 45 मिनट्स बी पार्ट को दो, एंड लास्ट का हाफ एन आवर और 20 मिनट सफिशिएंट है। पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चंस है, आप उनको या तो आप 10 सेकंड में कर सकते हो, वरना आप 1 घंटे में भी नहीं कर सकते। रीड एंड आंसर, इफ यू नो यू नो, और एल्स आप उस पे नहीं सोच सकते ज्यादा। और सोचते भी हो, बिकॉज एप्टीट्यूड ऐसा होता है ना कि आपको अट्रैक्ट करता है अपनी साइड की, सॉल्व मी, आप कर सकते हो, मुझे सॉल्व करो, मेरा आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, ट्राई करते हैं, निकलेगा। उससे करते करते इतना कैलकुलेशन हो जाता है और टाइम पूरा वेस्ट। Go for part C first of all and switch between part C, part B. Part C, part B की आपको माइंड क्लियर है, बिकॉज part C में एप्लीकेशन मेथड अप्लाई करते हो, एंड part B में लर्निंग मेमोरी। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है कि पुट अप डायरेक्ट क्वेश्चन से चूज द ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन, उन पे स्विच करो। लास्ट के 20 मिनट्स आप उसको पार्ट ए को दे दो। Who do you dedicate this success? आप किस को थैंक्स बोलना चाहते हो by this platform? मैं पूरा iFast प्लेटफॉर्म को थैंक्स बोलना चाहूंगी, स्पेशली कैलाश सर, बिकॉज ठीक है विशाल सर वगैरह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी टीचिंग्स बहुत हेल्पफुल रही है मेरे लिए, बिकॉज उनके क्रैश कोर्स है ना, अगर आप पढ़ भी लेते हो तो वो बहुत नई चीज ट्राई करते हैं कि नहीं आप ये ट्राई करो, नहीं आप ये ट्राई करो, आप ये चीज ट्राई कर लो, ये पक्का आएगी। और उनका प्रोडिक्शन बहुत सही दिखता है कि ठीक है इतना कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर भी कहते हैं ना कि आजकल की लाइफ के अंदर हार्ड वर्क है बट स्मार्ट वर्क आगे, स्मार्ट वर्क बहुत चीज है। तो स्मार्ट वर्क करते करते ठीक है उन्होंने बताते हैं कि आप इस पार्ट का ये चीज पढ़ लो, एंड डेफिनेटली शॉक्ड हो जाते हो कि ये चीज उन्होंने बोला, वो क्वेश्चन आपके सामने है, बस सॉल्व करना आना चाहिए। कैलाश सर को बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहूंगी, बिकॉज उन्होंने बताया मुझे पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अगर वो नहीं होता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मैं अभी भी वो मिस्टेक करती, सारे क्वेश्चन पढ़ती, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। और कहीं ना कहीं आपके आधे घंटा 10 मिनट से भी आपकी रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। उसके लिए मैं थैंक्स टू यू and to your platform also. Great. Okay, so any last message from your end to the new aspirants जो prepare कर रहे हैं, मैंने आप कुछ टिप देना चाहोगे अपनी तरफ से? तो पहले ही बोलूंगी कि start your preparation earlier only, like whenever you feel like you have to crack this, start your preparation from that day only. If you will think I'll do it tomorrow, I'll do it day after tomorrow, there is nothing like that. Do it today only so that pressure नहीं build up होता, बहुत इजीली करते हो, चीजें याद रहती है, समझ में आती है, बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, लोग 2-2 महीने में 3-3 प्रिपेयर करके दे देते हैं। मुझे मतलब क्या हो तो 2 साल लग गए, बिकॉज पहले पूरा साल दिया मैंने देने में, और इस बार मैंने ठीक है 3 to 4 मंथ्स दिए। बट हाँ, आप अगर प्रिपेयर करो तो स्टार्टिंग से करो, एंड अगर माइंड में है ना कि iFast के लिए जाना है, मैं बोलूंगी लाइव क्लासेस से ही जाओ, वो बेटर है। लास्ट में क्रैश कोर्स में बहुत वो दिक्कत होती है कि पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, वो उनके लिए काफी कुछ एक साथ में आ जाता है प्रिपेयर करने के लिए, बहुत दिक्कत हो जाती है, आपको पूरा 12-12 घंटे स्टडी करना पड़ता है। इट्स बेटर स्टार्टिंग से करो, 8 आवर का स्टडी टाइम निकालो, प्रैक्टिस पेपर्स करो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो मस्ट। आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, गो फॉर पीवाईक्यूज, एंड टाइम पे कुछ मत करो, iFast की एग्जाम की मैपिंग सीरीज ले लो एंड टेस्ट सीरीज दे दो, दैट्स बेनिफिशियल। बिल्कुल, सो दैट्स ग्रेट डियर, एंड आई होप स्टूडेंट्स काफी कुछ आपने सीखा है आज के दिन कि प्रिपेयर करना है, सही टाइम पे स्टार्ट करना है, एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, एंड ट्रस्ट ऑन द सोर्सेस, ट्रस्ट ऑन द एजुकेटर्स। डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस उनको है कि आपको सही तरीके से प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। So thank you so much dear for joining, and I wish you all the very best for your future. आपके जो भी dreams है to complete the PhD, definitely you will
achieve them all very soon. And once again, a big congratulations ki you got this wonderful result. Thank you so much. Okay, dear. So to all the students out there, we'll see you all with some new sessions. Till then, everyone, take care, and I hope आपने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ समझा है आज के दिन इस सेशन के अंदर. And keep studying, keep your hard work, smart work करते रहो, and definitely you will get the success. So see you all very soon. Till then, take care. Bye bye. Have a great day and a very happy learning.